Okay, so let's start with the next chapter in the systemic pathology, and that is renal system. So we'll talk about kidney here. In the kidney, the question is a 65-year-old patient on immunosuppressive therapy presents with a cough, fever, and pneumonitis. He presents now. He's already a patient of mainly kidney disease who is on immunotherapy, immunosuppressive therapy. Presents with a cough, fever, and pneumonitis. BAL, bronchoalveolar lavage, that is BAL reveals cells with basophilic inclusions. Almost up to now, and seeing the picture, you must have guessed the answer, that is basophilic inclusions. Which organism is responsible for the infection? If we see the HPE here, histopathological image here, we'll be seeing that there are these two eye appearance, and this is nothing but the owl eye appearance which is seen. Again, I'll be talking about this in the microbiology, where I'll be dealing with all the owl eye appearance and everything about this CMB there. So for now you have to just know that this is nothing but owl eye appearance is seen with CMV, and CMV is the cytomegalovirus, and cytomegalovirus is the leading cause of the viral pneumonia in patients on immunosuppressive therapy. So this one line also you should know, that CMV is the leading cause of the viral pneumonia in patients on immunosuppressive therapy. ठीक है, immunosuppressive therapy. If we see here, a 35-year-old patient presents with colicky abdominal pain. A 35-year-old patient presents with colicky abdominal pain, joint pain, and palpable purpura on extremities. Urine analysis shows 5 RBC per high power field with no protein in urine. There is no protein in the urine. What is the likely diagnosis? Likely diagnosis क्या हो सकता है? 35-year-old patient है, colicky abdominal pain है, joint pain is there, and palpable purpura on extremities. In the cardiovascular system itself, I have already told you one thing, that is nothing but HSP, the microangiopathies है ना, HSP, DIC and TTP, these three are the microangiopathic generally cardiovascular diseases. So in that condition, where I have already told you about the hinox-Knolln purpura, let me re-revise it for you. Not revise, I'll re-revise it for you. Okay, so let's see. Mm, where I have talked about HSP, hinox-Knolln purpura. Okay. Let me see. Here I have talked about HSP, that is hinox-Knolln purpura. It is IgA mediated. Okay, so the first thing you have to know is IgA mediated. It is mostly in the children. Here the presentation is not in the children in the question asked, but it is mostly occurring in the children. The patient has normal platelet, or platelet might be slightly increased, whereas purpuric rash, this you see purpuric rash usually on the lower limb. The clinical feature is of purpuric rash, arthralgia, and abdominal pain. This classical abdominal pain thing, and the renal, most common organ affected. The generally the kidneys are the most common organ affected in HSP. That's why this question has been again asked in the hinox-Knolln purpura, and hematuria is also the presenting feature here. So let's see now. So after knowing this much, you can now at least guess, isn't it? So let's see what all is there. Urine analysis shows 5 RBC per high power field. The next thing is palpable purpura and the colicky abdominal pain, isn't it? Colicky abdominal pain. So with no protein in urine. So the diagnosis is directly shifting towards nothing but the IgA vasculitis, which we also called as hinox-Knolln purpura. So our answer will be IgA vasculitis. Child presents with hematuria, 20 RBC per high power field. ठीक है, 20 RBC per high power field, and RBC casts. RBC casts are also there. Just note this point. RBC casts are also there with edema. Edema is also seen. There was evidence of deranged renal function test. Renal function test is also deranged. The possible diagnosis. Let's see. Child presents with hematuria, 20 RBC per high power field. RBC cast is being seen here. ठीक है, RBC cast is being seen here with edema. So this is a classical case of, generally if we tell, with edema and there is hematuria. So नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम अगर आपको याद है तो वहाँ से अगर आप देखेंगे सो जनरली दिस FSGS presents नेफ्रोटिक में जनरली देयर इज नो हेमाटूरिया, बट इन द नेफ्राइटिक देयर इज हेमाटूरिया. ठीक है, हेमाटूरिया. सो अगर इसको अगर हम देखें, MCD इज नेफ्रोटिक, इट कम्स अंडर नेफ्रोटिक, है ना, नेफ्रोटिक डिजीज है. हैवी प्रोटीन यूरिया विल बी देयर, है ना, हैवी प्रोटीन यूरिया विल बी देयर. If we talk about focal segmental glomerulosclerosis, it is also a type of nephrotic. It comes under nephrotic disease.
damage, and there will be albuminuria. If we talk about PSGN belongs to the category of nephritic. So our answer will be PSGN, because hematuria, the classical feature of generally nephritic syndrome, they are asking here. So this is nothing but PSGN, post streptococcal glomerulonephritis. IgA nephropathy, this is again a nephritic, but it is not associated with RBC caste. It again belongs to IgA nephropathy, it belongs to nephritic category, but it is not associated with RBC caste. So this RBC caste gives us the diagnosis of PSGN here. ठीक है, आगे चलो देखते हैं. A 20-year-old male presents with previous history of infection, hematuria, previous history of infection, and again hematuria is there. Serum analysis reveals deranged KFT, that is nothing but kidney function test, with elevated serum creatinine. The serum creatinine has been elevated. Anti-GBM antibody is found positive. The one and only thing that will generally tell us anti-GBM antibody. So anti-GBM antibody, I have talked about this in the बायोकेमिस्ट्री सेशन ऑल्सो. ठीक है, जो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी अगर वहाँ पे दिखा जा रहा है ना, glomerular basement membrane anti GBM antibody, so that is nothing but Goodpasture syndrome. This is nothing but Goodpasture syndrome. How? Let us break it down. So in the Goodpasture syndrome, what we'll have, it is also called as anti glomerular basement membrane antibody disease. You got the diagnosis from the first line only, that is anti-GBM antibody is generally seen in the Goodpasture. So it is also called as, the other name of this Goodpasture syndrome has been kept on this presentation only, that is anti-glomerular basement membrane antibody disease. ठीक है, membrane antibody disease. So this is a type 2 hypersensitivity reaction. We are doing pathology, so time and again this hypersensitivity reactions will be coming. In the immunology section I have already done it at one place, है ना. जनरली 40-50 मिनट का वो वीडियो होगा, अगर आप वो देख लेंगे तो पूरा का पूरा वो जनरली माइक्रो का पोर्शन भी हो जाएगा और पैथो का पोर्शन भी हो जाएगा. आई हैव टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट इम्यूनोलॉजी दैट यू नीड टू नो. ठीक है, नेक्स्ट इज antibody against alpha 3 chain of the type 4 collagen. In this Goodpasture syndrome there will be antibody, this anti-GBM antibody that is directed against the alpha 3 chain of the type 4 collagen. C of clinical features, यानी clinical features अगर हम देखें तो there will be hemoptysis and hematuria. ठीक है, hemoptysis यानी कि there will be blood in the cough. ठीक है, hemoptysis और वोमिट. ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ विल बी नथिंग बट यूरेमिया. द पेशेंट विल डाई हेयर ड्यू टू यूरेमिया. लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस जनरली इसमें हम कर सकते हैं. ठीक है, डायग्नोसिस के लिए. चलो, Goodpasture syndrome. A 5-year-old boy presented with periorbital and pedal edema. The pedal edema is there and there is periorbital edema, means the edema is around the orbit. ठीक है, periorbital edema as well as ascites भी है. Upon electron microscopy, effacement of the podocyte. This one line is enough to guess our diagnosis here. This is effacement of the podocyte. चाइल्ड इज देयर, बच्चा है यानी कि छोटा सा कोई डिजीज होगा, एंड इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, सो दैट इज नथिंग बट द मिनिमल चेंज डिजीज. सो आवर आंसर विल बी मिनिमल चेंज डिजीज. चलो, मिनिमल चेंज डिजीज में हमको थोड़ा और पढ़ लेना. देखो, जनरली मिनिमल चेंज डिजीज दैट इज लिपोइड नेफ्रोसिस और नील डिपोजिट डिजीज. इसमें बहुत कम डिपोजिट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नील डिपोजिट डिजीज, और देयर विल बी नो डिपोजिट सीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नील डिपोजिट डिजीज. मिनिमल चेंज यानी कि बहुत थोड़ा सा कम चेंज हुआ है. सो इन द एज, नाम से भी याद रखना कि मिनिमल है तो एज भी मिनिमल होगा, दैट इट विल बी प्रेजेंटिंग इन द जनरली चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 6 years, एंड इन दिस केस दे हैव गिवन अ 5-year-old चिल्ड्रन. ठीक है, cause of this is poorly understood, means still the cause of this minimal change disease has not been understood. It may be associated with atopy and Hodgkin's lymphoma, increase in mediators. ठीक है, increase in mediators, Hodgkin's lymphoma increase in mediators, and increased level of the lymphokines can be seen. Clinical feature, if we talk, there will be selective proteinuria. There will be selective proteinuria. Albumin will only be secreted out, and episodes of the edema will be seen, and edema all over the body, the edema is being seen here. Periorbital edema है, pedal edema है, everywhere there is edema. ग्रॉस की बात अगर हम करें तो नथिंग, नॉर्मल किडनी विल बी ऑब्जर्व्ड, इसीलिए इसको मिनिमल चेंज डिजीज भी बोलते हैं. देयर विल बी नथिंग, द नॉर्मल किडनी विल बी ऑब्जर्व्ड. लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो देयर विल बी नॉर्मल ग्लोमेरुलस, presence of lipid in PCT, and that's why it is also called as generally lipoid nephrosis. ठीक है,
इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे जनरल नील डिपॉजिट दिखेगा, दैट्स वाई नील डिपॉजिट डिजीज ऑल्सो इट इज कॉल्ड. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विल बी गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस. एंड देयर विल बी इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना. यहाँ पे जो एक फाइंडिंग दिया हुआ इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस दैट विल ओनली बी सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इट विल नॉट बी सीन इन जनरल द लाइट माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस. ठीक है. If we talk about the treatment will be excellent. 100% response is shown when treated with steroids. So steroids के साथ जब हम ट्रीट करेंगे इसको तो 100% जनरली यहाँ पे क्या होगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा एंड दिस विल सबसाइड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनिमल चेंज डिजीज. आगे देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज कंपोज्ड ऑफ टैम हॉर्स फॉल प्रोटीन. देखो ये जनरली याद करने वाली चीज़ें है ना. सो इसको मैं जनरली कास्ट आप जितने भी यहाँ पे कास्ट के बारे में पूछे जाते हैं मैं सब आपको यहीं पे दिखा देता हूँ. सो लेट्स सी. If we talk about the urine microscopy, in the urine microscopy there will be two things, cells and casts can be present there. और भी कुछ चीजें होंगी but generally cells and casts will be present. So in the cast section है ना, cast में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. So in the cast section, if they are talking about the hyaline cast, if hyaline cast is present, it will be normal individuals, pregnancy, fever और stress का condition हो सकता है. If there is RBC cast, this RBC cast is generally present in the case of the glomerulonephritis. There is damage to the glomerulus and there is inflammation going on inside the glomerulus that will result in the RBC cast. आगे देखें तो WBC cast, this WBC cast will be seen in the pyelonephritis condition. WBC casts are generally particular to pyelonephritis condition. If we talk about the broad or waxy cast, है ना, broadcast या फिर waxy cast, this will be seen in the chronic renal disease. In the chronic renal disease there will be broad or waxy casts present in the urine. मड्डी ब्राउन ग्रैन्युलर कास्ट की अगर हम बात करें, मड्डी ब्राउन ग्रैन्युलर कास्ट की अगर हम बात करें, दे विल बी जनरली इन द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. ठीक है. एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में लिपिड और फैटी कास्ट की बात करें तो दैट विल बी प्रेजेंट इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जनरली क्या होगा, लिपिड और fatty cast should be present there. Fatty cast should be present there. So which of the following is composed of TAM horsepower protein? So this hyaline cast is generally composed of the TAM horsepower protein. Hyaline cast. Hyaline cast का क्या होता है, जनरली इट इज cylindrical shape made up of TAM horsepower protein. इसका जो जनरली if we talk about the biochemistry or if we talk about the composition of this hyaline cast, this is generally made up of the TAM horsepower protein. If we talk about the next thing, that is TAM horsefall protein, it comes from the loop of Henle. TAM horsefall protein अगर जैसे नीट पीजी की क्वेश्चन या फिर जनरली एम्स में भी शायद एक बार पूछा गया है कि जनरली TAM horsefall प्रोटीन जो है वो किडनी के जो कौन से पोर्शन से आता है. सो जनरली दैट इज नथिंग बट द TAM horsefall प्रोटीन comes from the loop of the Henle, seen in routine examinations, fever, dehydration and pregnancy also. क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर हाइलिन कास्ट आपको बताया था, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी देखा जाता है, जनरली प्रेगनेंसी में भी एंड फीवर में भी एंड इन द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस आल्सो वी कैन सी दिस टाइम हॉर्सफॉल प्रोटीन एंड इट इज एसोसिएटेड विद द हाइलिन कास्ट. ठीक है. हाइलिन कास्ट. आगे देखो. यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ मिडिल एज्ड मैन शोज बेंस जोन्स प्रोटीन्स. बेंस जोन प्रोटीन यूरिया अगर आपको याद है तो जनरली यू विल बी गुड टू गो विद दिस क्वेश्चन. मिडिल एज्ड मैन shows Baines Jones proteins on X-ray skull, multiple lytic lesions. Multiple lytic lesions, that is the punched out lesion on the skulls are being seen. ठीक है. Multiple lytic lesions are seen. Which of the following protein fractions is elevated in this condition? This is the classical feature of nothing but generally multiple myeloma. ठीक है. multiple myeloma इसके बारे में जनरली हेमेटोलॉजी में मैंने एकदम डीप में ही बात किया था वहाँ पे. सो यहाँ पे दो चीज़ें देखो, एक्सरे स्कल पे जनरली क्या दिख रहा है, लाइटिक लीजन. एंड लाइटिक लीजन इज जनरली द क्लासिकल फीचर्स ऑफ जनरली द मल्टीपल माइलोमा विथ बेंस जोन्स प्रोटीन. अगर बेंस जोन प्रोटीन यूरिया है देन almost the diagnosis is confirmed. And there the gamma globulin है ना, which of the following protein fraction is elevated. कौन सा प्रोटीन फ्रैक्शन एलिवेटेड होता है, सो दैट इज नथिंग बट गामा ग्लोबुलिन. ठीक है. गामा ग्लोबुलिन इज एलिवेटेड. आगे देखो. A 8-year-old child develops sore throat and couple of weeks. देखो sore throat स्ट्रेप्टोकोकस, जनरली यहाँ पे ये समझो कि जनरली 8-year-old child develops sore throat, that is स्ट्रेप्टोकोकस का जनरली इन्फेक्शन हुआ है. एंड कपल ऑफ वीक्स लेटर ही हैज पेरी और वाइटल एडिमा है ना, एंड पासेज ऑफ कोला कलर्ड यूरिन. ठीक है. कोला कलर्ड यूरिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली फिट्स इन द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड. सो देखो कोला कलर यूरिन की अगर बात हो रही है, this is nothing but nephritic syndrome and this cola color will be there due to generally the hematuria. ठीक है. हेमेटूरिया के कारण से जनरली द कोला कलर यूरिन विल बी देयर इन द नेफ्राइटिक डिजीज. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द फ्रोथी यूरिन इट विल बी प्रेजेंट ऑन द नेफ्रोटिक कंडीशन. नेफ्रोटिक कंडीशन में क्या होगा, झाग बनेगा यूरिन में, देयर विल बी फ्रोथी टाइप ऑफ यूरिन प्रेजेंट. सो अगर इसमें हम देखें
है ना। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, सो मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि सोर थ्रोट दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस का जनरली क्या हो रहा है, जनरली इन्फेक्शन। और स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद अगर कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर ऐसे हेमेटूरिया के साथ या फिर कुछ जनरली ऑर्बिटल के साथ जनरली अगर प्रेजेंट कर रहा है, सो दैट इज शिफ्टिंग आवर डायग्नोसिस टुवर्ड्स पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, PSGN, ठीक है। A patient has been diagnosed with a solid cancer of the bowel. Bowel में solid cancer है. He also experienced massive proteinuria. After few months of initial diagnosis of cancer. Cancer के diagnosis के just कुछ दिनों के बाद he experienced massive proteinuria. Which of the following is likely cause for the development of urinary finding? Urinary finding के लिए which of the following is the likely cause? ठीक है, likely cause कौन सा होगा? So just see. लेट अस टॉक अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये जनरली द डायग्नोसिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स जनरली यहाँ पे सॉलिड कैंसर ऑफ द बाउल से। सो चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी के बारे में, उसके बाद जनरली आप खुद वहाँ पे आंसर लगा लेना। देखो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, थिकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसमें, देयर विल बी थिकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। कॉजेज विल बी प्राइमरी और आइडियोपैथिक कॉजेज की अगर हम बात करें, द कॉजेज दैट वी डोंट नो और इट मे बी प्राइमरी कॉजेज, है ना, जैसे कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, PLA2 रिसेप्टर, थ्रोम्बोस्पोंडिन THS-D7 एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, CD10 दैट इज न्यूरल इंडोपेप्टिडेज। आगे आगे देखो सेकेंडरी कॉजेज ड्रग्स यानी कि गोल्ड, NSAIDs एंड पेनिसिलामाइन कैन बी द सेकेंडरी कॉजेज। इन्फेक्शंस में HBV, HCV, सिफिलिस, सिस्टोसोमा, मलेरिया एंड लेप्रोसी कैन बी कॉजेज। कैंसर में देखो आप, कैंसर द क्लासिकल कॉलन कैंसर इट विल बी एसोसिएटेड कोलन कैंसर, लंग कैंसर एंड मेलानोमा। और हमारे क्वेश्चन में भी जनरली क्या पूछ रहा है कि बॉवेल का कैंसर जनरली उसको क्या हुआ था, जनरली he was diagnosed with bowel cancer, and after the treatment he started with some hematuria, ठीक है। हेमाटूरिया बोल रहा है कि मैसिव प्रोटीनयूरिया बोला, मैसिव प्रोटीनयूरिया, he started with मैसिव प्रोटीनयूरिया, ठीक है। सो आगे देखो जनरली सिस्टेमिक डिजीजेज कैन ऑल्सो कॉज दिस, एंड सिस्टेमिक डिजीजेज कैन बी डायबिटीज मेलाइटस एंड SCE, ठीक है। नेक्स्ट विल सी इन ह्यूमंस MGN एंटीबॉडी अगेंस्ट PLA2 रिसेप्टर, ठीक है, PLA2 रिसेप्टर इन रैट एंड माइस, हेमन नेफ्राइटिस दैट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट मेगालिन एंटीजन, ठीक है। सो हमको ह्यूमन के लिए जनरली याद रखना है, इन ह्यूमंस द मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी देयर विल बी एंटीबॉडी अगेंस्ट द PLA2 रिसेप्टर, PLA2 रिसेप्टर, देयर विल बी सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स इन, देयर विल बी सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स इन दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पाइक्स, स्पाइक एंड डोम पैटर्न। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो दैट इज नथिंग बट स्पाइक एंड डोम पैटर्न, ठीक है, स्पाइक एंड dome pattern. So our answer here will be membranous glomerulonephropathy, glomerulopathy, because generally it is associated with a solid cancer and proteinuria is being seen, massive proteinuria is being seen, ठीक है। So the our answer will be here is nothing but membranous glomerulopathy। आगे देखो कुछ ऑफ दिस इज नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ठीक है। अभी ये सब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, पूरा एवरीथिंग वी हैव डन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एवरीथिंग वी नो, बट जनरली हम क्या करते हैं कि बैठ के जनरली एक बार ये नहीं कर लेते कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन कौन से पढ़ते हैं और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट कन्फ्यूजन विल हैव व्हाइल डीलिंग विद दिस टू डिजीजेज इन रीनल, ठीक है। ये रीनल मेडिसिन की बात करूं या फिर पैथोलॉजी की बात करूं, विल हैव अ ग्रेटेस्ट कन्फ्यूजन कि ये नेफ्राइटिक है या नेफ्रोटिक है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे देखो in the nephrotic category there will be minimal change disease. The first disease minimal change disease, and it will be in the child. Next will be FSGS, focal segmented glomerulosclerosis. The next will be membranous nephropathy जो हमने अभी बात की, diabetic nephropathy and amyloidosis. These all will be in the generally condition of nephrotic. nephrotic के अंदर ये सारे आएंगे। nephritic की अगर हम बात करें, so in the nephritic condition there will be PSGN, post streptococcal glomerulonephritis, and there will be generally associated with hematuria। आगे देखो IgA nephropathy will be there, that is Burgers, ठीक है, Burgers disease। RPGN will be there, Alport syndrome, and membranoproliferative glomerulonephritis that will also come under the category of nephritic, ठीक है। सो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में कौन कौन से डिजीज पड़ते हैं, ये अगर हमको ज़्यादा यहाँ पे पता हो गया तो देखो यहाँ से डायरेक्ट ही बन जाएगा व्हिच ऑफ दिस इज नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम। सो इन द नेफ्राइटिक सिंड्रोम द मिनिमल चेंज डिजीज, देखो मिनिमल चेंज डिजीज इन द नेफ्रोटिक केस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी और नेफ्रोपैथी दैट कम्स अंडर अगेन नेफ्रोटिक,
focal segmented FSGS, it again comes under generally the nephrotic range. So this is nothing but post infectious glomerulonephritis, that is PSGN, post streptococcal glomerulonephritis. This comes under the nephritic generally condition. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में द मोस्ट क्लासिकल फाइंडिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होगा? देखो, लेट्स सी, व्हेन डायबिटीज जनरली, डायबिटीज से क्या होता है जनरली, when there is a long standing diabetes and the sugar is not under control and you are not taking it seriously, it will start after some time, it will start hitting your organs. ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की सबसे बड़ी जो कंडीशन यहाँ पे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बताया जा रहा है. सो मीन्स द कॉज इज डायबिटीज एंड ड्यू टू डायबिटीज नाउ द ऑर्गन दैट इज बीइंग affected is nothing but kidney. So kidney पे अब क्या हो गया, जनरली there will be effect in the kidney being shown. So generally जब डायबिटीज की केसेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं एंड शुगर विल नॉट बी कंट्रोल, इट विल स्टार्ट हिटिंग द अदर ऑर्गन्स. ठीक है, टारगेट ऑर्गन में डैमेज करने लगेगा एंड दैट विल बी लाइक किडनी में डैमेज होने लगेगा, आफ्टर किडनी एंड अलॉन्ग विथ किडनी ओनली. मैं ये बात बता दूं आपको, जनरली अलॉन्ग विथ किडनी अगर आपको जनरली क्या देखा पड़ेगा, जनरली यू विल बी सीइंग लाइक some changes in the generally retina, है ना, आई में भी जनरली चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो दिस आर द टारगेट ऑर्गन्स विच आर बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज. ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज. सो लेट अस, यहाँ पे हम रीनल की बात कर रहे हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द डायबिटिक नेफ्रोपैथी. नेफ्रो यानी कि जनरली किडनी, पैथी यानी कि पैथोलॉजी डिजीज, एंड डायबिटीज यानी कि डायबिटीज की वजह से नेफ्रो यानी कि किडनी में डिजीज हो रहा है. सो इन दिस केस देयर विल बी थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन विल बी सीन. The thickening of capillary basement membrane will be seen. Hyaline arteriosclerosis, it will lead to benign hypertension. This hyaline arteriosclerosis will lead to benign hypertension in the case of diabetes mellitus, है ना. ठीक है, आगे देखो, अरमानी एब्स्टिन लीजन विल बी सीन, दैट इज ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन पीसीटी. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर आप देखो जनरली, तो देयर विल बी ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन पीसीटी एंड उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, अरमानी. एक फैंसी नेम है, अरमानी एब्स्टिन लीजन. डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, फिब्रिन कैप, कैप्सूलर ड्रॉप. ठीक है, इतना चीज दिखेगा. नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, दैट इज केडब्ल्यू लीजन्स भी इसको बोलते हैं, एंड इट लीड टू पैपिलरी नेक्रोसिस आल्सो. वी कैन see here papillary necrosis can also be seen here. So this is the condition of diabetic nephropathy, and the everything that I have told you here in the diabetic nephropathy belongs to the answer of certain questions. Yes, certain questions में आपको पूछा जाएगा and you have to give this answers. So generally most characteristic finding of diabetic nephropathy, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, अरमानी एब्स्टिन चेंज भी बताया था जनरली इन द glycogen deposition in the PCT, and the next thing that I have told you is nothing but KW lesion, that is nodular glomerulosclerosis, and this is generally the most characteristic finding. So KW जो लीजन मैंने बोला था, that is nothing but Kimmel-Steele Wilson disease will be seen. ठीक है, Wilson disease will be seen. The presence of the subepithelial humps on electron microscopic examination of kidney biopsy. On the kidney biopsy, there is presence of subepithelial humps. Subepithelial humps are seen there in the microscopic examination of the kidney biopsy. So generally ये देखो, अगर स्पाइक अपीयरेंस की बात करता है तो जनरली स्पाइक एंडोम हमने अभी ऊपर देखा, दैट इज नथिंग बट मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी हो जाती है. बट यहाँ पे जनरली हमको क्या बता रहा है, पीएसजीएन से जनरली बम्प अपीयरेंस की बात हो रही है. सो दिस बम्प अपीयरेंस विल बी सीन ऑन द बम्प और हम्प अपीयरेंस, दिस विल बी सीन ऑन द पीएसजीएन. सो लेट अस सी अबाउट पीएसजीएन. पीएसजीएन में क्या क्या होता है. सो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दिस इज अ टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी 3 रिएक्शन. ठीक है, टाइप ऑफ एचएस 3 रिएक्शन. It is also called as post-infectious glomerulonephritis, acute proliferative glomerulonephritis भी इसको बोला जाता है, caused by generally streptococcus. मैंने बोला था ना, streptococcus की infection के बाद there will be something problem in the kidney, and this is nothing but the caused by post-streptococcus pyogenes group A beta hemolytic streptococcus strain 1241. ठीक है, ये जनरली यहाँ पे दिखाया गया है ना. If we talk about the clinical features, sore throat 13 to 14 days तक के लिए रहेगा. ठीक है, sore throat, the patient will present with sore throat for 13 to 40 days, and then there will be cola color urine, that is the hematuria will be started, and this is nothing but PSG and the nephritic range जिसमें हमने पढ़ा था. ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में हमको क्या दिखेगा, ट्रांजिएंट हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया ब्लड टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ C3 दिखेगा वहाँ पे. ग्रॉस फाइंडिंग देखे तो फ्ली बीटन अपीयरेंस, ये देखो, ये फ्ली बीटन अपीयरेंस ऑफ द किडनी विल बी सीन इफ वी सी द ग्रॉस किडनी, है ना. इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे अगर हम देखें तो देयर विल बी स्टारी स्काई अपीयरेंस. ठीक है, स्टारी स्काई अपीयरेंस. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखें तो देयर विल बी सब एपिथेलियल हम्प्स, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया. देयर विल बी सब एपिथेलियल हम्प्स, ये देखो, ये सब एपिथेलियल हम्प्स विल बी सीन. ठीक है, सब एपिथेलियल
हम्स विल बी सीन, विसरल एपिथेलिया है ना, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से देयर विल बी सब एपिथेलियल जनरली हम्स विल बी सीन। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिस इज सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। वो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायजेंस का जब वो रिसाइड कर जाएगा, इट विल बी सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर। सो आवर आंसर विल बी PSGN, ठीक है, PSGN। आगे देखते हैं, क्रिसेंट फॉर्मेशन इज सीन। देखो क्रिसेंट फॉर्मेशन किस में देखा जाएगा, जनरली FSGS में, MGN में, PSGN में या फिर RPGN में। सो क्रिसेंट फॉर्मेशन विल बी सीन इन रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अभी देखो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ठीक है, RPGN है क्या। सो इन द RPGN इसका दूसरा नाम ही क्या है, इट इज क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये देखो क्रिसेंट फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज क्रिसेंट फॉर्मेशन। कंपोजिशन विल बी फिब्रिन, ल्यूकोसाइट एंड पैराइटल एपिथेलियल। Most common thing in the composition of this crescentic glomerulonephritis will be nothing but the parietal epithelial and visceral epithelial. So parietal epithelial cell will be the most common and the visceral epithelial will be the least common. Visceral epithelial cells will be the least common. If we talk about the prognosis, there will be increased number of crescent, there will be increased number of crescents and there will be, it will lead to poor prognosis. जितना कम crescent formation है it will lead to good, और जितना ज़्यादा crescent formation है it will lead to poor prognosis. फीचर्स में अगर हम देखें तो RPGN1, RPGN2 एंड RPGN3, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ RPGN इज नथिंग बट RPGN3, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थर्ड, ठीक है। अगर हम RPGN1 में देखें तो जनरली इट विल इंक्लूड गुड पास्चर सिंड्रोम एंड, जिसको हमने अभी एंटी GBM एंटीबॉडी करके पढ़ा था। RPGN2 में अगर हम देखें तो PSGN, IgA, SLE, HSP, antigen antibody complex will be seen there in all these condition. PSGN like next will be IgA vasculitis है ना, SLE होगा हिनोक्सनोलन पर्प्यूरा, जिसको हम IgA vasculitis भी बोलते हैं। नेक्स्ट विल सी इन द RPGN3 के कैटेगरी में माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस, जिसको हम पॉची इम्यून वास्कुलाइटिस भी बोलते हैं। इम्यूनोफ्लोरेंस की बात करें तो RPGN1 में लीनियर रिबन पैटर्न, ये रिबन ये वर्ड याद रखो, ठीक है। देन इन द RPGN2 देयर विल बी लंपी बम्पी ग्रैनुलर स्टारी स्काई एंड गार्लैंड पैटर्न, ठीक है। आगे देखो इसमें RPGN3 में देयर विल बी नील, कुछ भी नहीं दिखेगा जनरली इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये तीनों में कॉमन RRR, दैट इज RPGN कॉजिंग रप्चर एंड रिंकलिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, RRR फिल्म के नाम से भी आप याद कर सकते हो। दिस स्लाइड्स यू नो फार बेटर देन मी, है ना, आप लोगों ने जनरली प्रीति मैम का लेक्चर अगर किया होगा तो वहीं का स्लाइड है ना, ठीक है। पोडोसाइट्स आर सीन इन, पोडोसाइट्स जनरली किस में सीन करेंगे, सो जनरली देखो यहाँ पे किडनी की अगर फंक्शनल यूनिट की बात की जाए ना, सो इन द ग्लोमेरुलस देयर विल बी आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस का जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज बोमन्स कैप्सूल एंड आर्टेरियोल इंटर्स द ग्लोमेरुलस व्हिच इज, देखो अभी मैं किडनी की सिंपल बात समझता हूँ फिर ये मैं बात करेंगे, ठीक है। सो इफ यू सी द किडनी, जो ग्लोमेरुलस है उसका जो आउटर मोस्ट कैप्सूल होगा दैट इज कॉल्ड एज द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब एक इधर से आर्टरी आएगा, दो आर्टेरियोल होंगे, है ना, दो आर्टेरियोल होंगे। एक इधर से आएगा जो ब्लड लेके आएगा और एक इधर इधर नीचे फिल्टर हो जाएगा और उधर से क्या होगा, ब्लड लेके चला जाएगा। सो जनरली द व्हिच इज कैरिंग द ब्लड, है ना, जो कैरी करके ब्लड लेके आ रहा है ना, जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में इंटर हो रहा है व्हिच इज कैरिंग द ब्लड, दैट इज नथिंग बट आ रहा है जहाँ से, दैट इज एफेरेंट, आ रहा एफेरिएंट। और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, जनरली क्या होगा, जो जितना वो फिल्टर होना का होगा और फिर यहाँ से ब्लड आगे बढ़ जाएगा, दैट प्लाज्मा विल मूव फॉरवर्ड, जब प्लाज्मा आगे मूव कर जाएगा तो दैट उसके लिए फिर एक कैरी करने के लिए चाहिए, सो दैट विल बी इफरेंट। सेम इन द केस ऑफ जनरली नर्व्स के बारे में भी हम जनरली पढ़ते हैं कि यहाँ से अगर हमको सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना है जनरली अप टू स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू ब्रेन, दैट विल बी नथिंग बट लेके जो जा रहा है दैट इज अफरेंट नर्व, आ रहा है ब्रेन की तरफ। और जब ब्रेन से आता है सिग्नल दैट विल बी कैरिड बाय नथिंग बट द इफरेंट न्यूरॉन्स, वो हमने पढ़ा है। सो सेम कंडीशन यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियल लेके आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियल लेके जाएगा। एंड जनरली अब जब ये एफरेंट आर्टेरियल आएगा तो इट विल मेक अ टफ कैपिलरीज, ठीक है, एक टफ कैपिलरीज होगा जनरली। सम सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कैपिलरीज नोन एज मेसेंजियल सेल्स, जो कैपिलरीज के बीच में, किडनी की अगर एनाटॉमी आपको याद है तो जनरली यू मस्ट हैव सीन देयर कि जनरली सम सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कैपिलरीज सम सेल्स आर प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड एज मेसेंजियल सेल्स व्हिच आर द मैक्रोफेजेज एंड एमाइलोइड इन द किडनी डिपोजिट, ठीक है, एमाइलोइड इन द किडनी डिपोजिट्स। देन इट गोज आउट एट डिफरेंट टाइटल, जो मैंने आपको बता दिया। देखिए दिस इज DCT, दिस इज PCT, इट माइट भी, है ना, ये यहाँ पे जनरली जो मैं दिखा रहा है दिस बीच में जो स्पेसेज है ये जनरली पूरा क्लियर नहीं है पिक्चर, है ना। सो दिस इज मेसेंजियम, है ना, मेसेंजियम, दिस इज नथिंग बट ग्लोमेरुलस, है ना।
डेंसिटी पीसीटी साइड में है, ठीक है। सो जनरली इफ यू सी अबाउट द बोमन्स कैप्सूल सराउंड्स द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है। इट हैज टू लेयर, आउटर लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल एपिथेलियल, आउटर लेयर कहीं पे भी है तो दैट इज पैराइटल लेयर है ना, और इनर लेयर इज विसरल लेयर, और ये दोनों एपिथेलियल लेयर है, सो पैराइटल एपिथेलियल एंड विसरल एपिथेलियल लेयर। एंड इनर लेयर में क्या होता है, जो विसरल एपिथेलियल लेयर है वहाँ पे क्या होगा, पोडोसाइट्स, पोडो यानी कि फुट, साइट्स यानी कि सेल, यानी कि podocytes. So generally this is the foot like generally cells present, जो generally कहाँ होगा, visceral epithelial layer में होगा। The space created by both layer is called as Bowman's space. It is where urine accumulates and goes to the outer parts of the kidney, goes to the outer parts of the kidney. Filtration membrane की अगर बात की जाए तो urine forms formation occurs at the junction of the visceral layer of Bowman's capsule and capillaries, which is known as the filtration membrane. ये filtration membrane की generally processes of जनरली इफ वी सी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, देर विल बी नथिंग बट, जस्ट अ मिनट, प्रोसेसेज ऑफ पोडोसाइट, ये फुट की तरह जो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट पोडोसाइट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट पोडोसाइट। आगे देखो दिस इज ग्लोमेरुलर, ये बीच वाला लेयर जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड नीचे जो है यहाँ पे दिस लेयर इज नथिंग बट कैपिलरी इंडोथेलियम, कैपिलरी इंडोथेलियम विल बी प्रेजेंट हियर। सो जनरली यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, देखो पूरा कवर, पोडोसाइट्स इज सीन इन, so podocytes will be seen in nowhere but Bowman's capsule, Bowman's capsule के जो inner layer है visceral epithelial layer, वहाँ पे generally podocytes will be seen. Maximum endocapillary proliferation is seen in, देखो maximum endocapillary proliferation, इंडोकैपिलरी की प्रोलिफरेशन इज सीन इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है वायर लूप लीजन्स आर सीन इन, सो दिस वायर लूप लीजन्स आर सीन इन एसएलई, हाउ, लेट्स सी इट वंस, ठीक है। अभी देखो एसएलई किडनी रिलेटेड यानी किडनी ल्यूपस नेफ्राइटिस विल बी सीन देयर, ठीक है। सो जनरली अगर यहाँ पे हम देखो तो एसएलई में जनरली क्या होगा, वायर लूप लीजन्स ऑब्जर्व्ड इन क्लास 3, 4 एंड 5 सब एंडोथेलियल डिपोजिशंस विल बी सीन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम पे ये थंबनेल, जनरली थंबनेल का इंप्रेशन दिखेगा, थंब प्रिंट का जनरली दिखेगा, थंबनेल बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब चलाते चलाते मेरा दिमाग खराब हो गया। सो जनरली थंबनेल नहीं, थंब, जनरली थंब प्रिंट की इंप्रेशन देखी जाएगी। एसएलई में जनरली क्या होगा, फुल हाउस इफेक्ट होगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, दिस फुल हाउस इफेक्ट विल बी सीन, IgG AM C1 C3 गेट्स डिपोजिटेड इन द किडनी। थोड़ा सा यहाँ पे समरी में लिखा हुआ ये भी थोड़ा पढ़ लो, जनरली सब इंडोथेलियल, सब एपिथेलियल डिपोजिशन कहाँ पे दिखेगा, सब एपिथेलियल डिपोजिशन विल बी सीन इन PSGN एंड MGN, ठीक है। मेसेंजियम में जनरली बर्जर्स डिजीज अफेक्ट करेगा, है ना। अगर नेक्स्ट देखें इंट्रामेम्ब्रेनस डिपोजिशन है, इंट्रामेम्ब्रेनस डिपोजिशन विल बी सीन इन DDD, दैट इज MPGN टाइप 2, ठीक है। सब इंडोथेलियल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें दैट विल बी सीन इन MPGN1, ठीक है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 1 एंड वायर लूप्स और एसएलई, वायर लूप किस में दिखेगा, जनरली एसएलई में दिखेगा। हेपेटाइटिस सी वायरस इज एसोसिएटेड विद क्रायोग्लोबुलिनीमिया ग्रेटर देन MGN, देखो MGN और क्रायोग्लोबुलिनीमिया दोनों अगर ऑप्शंस में देंगे तो हेपेटाइटिस सी वायरस इज एसोसिएटेड मोर विथ क्रायोग्लोबुलिनीमिया देन MGN, ठीक है, MGN। सो इतना हमको याद रखना। आगे देखो वायर लूप लीजन हो गया एसएलई में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ADPKD। सो चलो ADPKD और ARPKD दोनों देख लेते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। सो इन ADPKD जनरली ऑटोसोमल डोमिनेंस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट AD यानी कि याद रखना एडल्ट में दिखेंगे ये, ठीक है। इन ARPKD जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दिस विल बी सीन इन द चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड में। जनरली अगर हम बात करें, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल, जो लोग आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह देखते हो, प्रेमानंद बाबा को आप लोग देखते होंगे, मस्ट बी समवन माइट बी सीइंग हिम, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है उनके, जनरली कथा वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे। सो इफ वी सी देयर, वो जो प्रेमानंद बाबा की जो कंडीशन है दैट इज नथिंग बट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम हिम सेइंग टू मेनी टाइम्स कि मेरा दोनों किडनी खत्म है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है ना। जनरली क्या होता है कि टाइम एंड अगेन आई हैव टू गो फॉर हीमोडायलिसिस, है ना, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, बट ऑल्सो इज लाइक फिट एंड फाइन एंड गिविंग द लेक्चर होल डे, है ना। सो इन दैट कंडीशन अगर आप देखो तो वो दो टाइप के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होते हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एक जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। सो AD ऑटोसोमल डोमिनेंट, दैट AD फॉर एडल्ट, यानी कि ऑनसेट कब दिखेगा, एडल्ट में। सो जनरली आफ्टर 30 to 40 35 40 ईयर्स, जनरली उनके केस में भी आफ्टर 30 ईयर्स उनको जनरली
इट स्टार्टेड, है ना, जनरली चाइल्डहुड में कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। सो इफ इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, सो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है और वो जनरली क्या होगा, एडल्टहुड में जनरली पता चलेगा, एडल्ट ऑनसेट होगा उसका। सिस्ट्स आर शोन बोथ इन द आउटर एंड इनर सरफेस। सिस्ट क्या होगा, आउटर सरफेस में भी होगा, इनर सरफेस में होगा। द आउटर सरफेस, ARPKD, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बात कर रहा हूँ। द आउटर सरफेस लुक्स नॉर्मल एंड द सिस्ट्स आर ओनली शोन ऑन द इनर सरफेस। इसका जनरली चाइल्डहुड ऑनसेट, इसका जनरली एडल्ट ऑनसेट। क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे क्या होगा, 16 एंड 4 विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे जनरली क्रोमोजोम नंबर 6 विल बी अफेक्टेड। इफ वी टॉक अबाउट द जीन, द अफेक्टेड जीन इज PKD1 and 2, है ना, द अफेक्टेड जीन इज PKHD। द अफेक्टेड प्रोटीन इज पोलीसिस्टीन, द अफेक्टेड प्रोटीन इज फाइब्रोसिस्टीन। पोलीसिस्टीन, है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट में, एंड fibrocystin in the autosomal recessive condition. The cause, if we talk about some of the causes of the autosomal dominant polycystic kidney disease, there will be aortic dissection in boys, mostly boys में प्रेजेंट करेंगे। increased BP होगा जनरली, है ना, increased blood in urine, hematuria will be there, berry aneurysm, colonic diverticula and cysts can also lead to generally the ADPKD, ठीक है। congenital hepatic fibrosis is present in this cyst generally। congenital hepatic fibrosis जनरली क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में जनरली ये एक कॉज हो सकता है या फिर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ADPKD एंड ARPKD। सो दिस बायलैटरल किडनी ट्रांसप्लांटेशन जनरली, देखो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो ADPKD में जनरली क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, होगा, ठीक है। ADPKD ऑटोसोमल डोमिनेंस, क्रोमोसोम 4 and 16 अभी हमने पढ़ा। सिस्ट इन द लीवर एंड पैनक्रियाज विल बी सीन, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, बायलैटरल किडनी एंड ट्रांसप्लांटेशन। देखो बायलैटरल किडनी ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं होता, लर्न दिस पॉइंट। बायलैटरल किडनी ट्रांसप्लांटेशन कभी नहीं होता। किडनी ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज यूनिलैटरल, ठीक है, यूनिलैटरल किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है। एंड द लेफ्ट किडनी इज प्रीफर्ड मोर। अगर ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमको चूज करना है, देन विल चूज लेफ्ट किडनी, ठीक है, लेफ्ट किडनी को हम चूज करेंगे बिकॉज जनरली, एंड इसमें एक क्वेश्चन एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि जनरली जब लेफ्ट किडनी या फिर राइट किडनी, ऐसे करके नहीं पूछा, बट जनरली दे विल बी, जनरली वो पूछेंगे आपको, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन बनाएंगे, ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी से, कि जब हमको सर्जरी, इसको एसोसिएट करना सर्जरी से भी, कि जब हमको जनरली अगर किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं। सो ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन द किडनी इज डिप्लॉयड इन द राइट इलियक फोसा। ये पॉइंट याद रखना, राइट इलियक फोसा। WBC कास्ट इन हमने ऊपर ही किया था, पाइलोनेफ्राइटिस। RBC कास्ट इन RPGN, है ना, RPGN क्या है, नेफ्राइटिक केस क्या जनरली डिजीज, विच इज द मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद HIV के साथ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस विल बी देयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन में ट्रू क्या है, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। व्हिच इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी। देखो किडनी के कैंसर्स में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो किडनी के कैंसर में जनरली देखो, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ किडनी इज रीनल पैपिलरी एडिनोमा। मोस्ट कॉमन बेनाइन, ठीक है, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ द किडनी इज रीनल पैपिलरी एडिनोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी इज RCC, रीनल सेल कार्सिनोमा, फॉलोड बाय Wilms ट्यूमर। Most common kidney tumor associated with tuberous sclerosis, that is nothing but angiomyolipoma. Most common type of RCC, renal cell carcinoma में generally clear cell carcinoma is the most common type of RCC, and 70 to 80% of the generally renal cell carcinoma is of the type clear cell carcinoma. Most common type of renal carcinoma associated with dialysis, dialysis के साथ nothing is papillary carcinoma. Most common renal carcinoma associated with sickle cell trait के साथ medullary carcinoma. Renal carcinoma having best prognosis, this is nothing but chromophobe type, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो आप, विच इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फॉर RCC, विच इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी, दिस इज नथिंग बट रीनल सेल कार्सिनोमा। विच इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फॉर RCC के सबसे, रीनल सेल कार्सिनोमा का सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग, दैट इज टोबैको, ठीक है। विच इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन एसोसिएटेड विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ लीवर इज द मोस्ट कॉमन जनरली ऑर्गन एसोसिएटेड। यहाँ पे एक और चीज पढ़ लो कि लिस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो दैट विल बी लंग, ठीक है, लिस्ट विल बी लंग। आगे देखते हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट डन, ठीक है। सो इसके बाद हम लीवर करेंगे, दैट इज हेपेटोबिलियरी सिस्टम की बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द
जनरली रीनल, ठीक है, रीनल पैथोलॉजी वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क। वो दो चीज़ें आप देख लेना, नेफ्रोटिक के रेंज में क्या क्या पड़ता है एंड नेफ्राइटिक के रेंज में क्या क्या पड़ता है। दैट अगेन इट विल बी डूइंग इट इन द सर्जरी एंड ये वाला जो जनरली है किसको हम बोलते हैं, दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन में तो पूरा का पूरा वो रीनल है ही, दो ही चीज़, नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा करेंगे, सर्जरी में ये एडीपी केडी वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, और वहीं पे हम कास्ट की बात भी फिर से करेंगे। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।